Dear students, see second session of practice board examination सेशन पार्ट 2 कर दीजिए इसको, पार्ट 2। ठीक है, मीन्स एक वीडियो पहले डाल चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो एंड दिस वन इज माय सेकंड वीडियो फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ग्रामर। सो प्लीज, सीमा बॉट रेडियो, आर्टिकल भरना है इसमें। रेडियो एक इन्वेंशन भी है, तो यहां पे क्या आना चाहिए? इन्वेंशन अगर इसको मानते हैं तो द, यहां पे एन है बेटा, आई एम सॉरी, क्या है? एन, वो सही से नहीं लिखा गया है। तो रेडियो अगर हम इन्वेंशन इसको मानते हैं, बी कंसीडर इट एन इन्वेंशन, देन हियर मस्ट बी द, यहां पे द होना चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या किया है? रेडियो को बॉट किया है, परचेज किया है, खरीदा है। दैट मीन्स इट्स अ थिंग लाइक पेन और एनीथिंग एल्स। पेन इज आल्सो इन्वेंशन, पेन इज आल्सो एन इन्वेंशन। सो हियर वी कंसीडर द रेडियो एज ए थिंग। सो आर्टिकल विल बी ए। Here comes the article A. Now we will see the immediately after we have written the second sentence, that is Jesse Bose invented radio. अब here it is not a thing, it's an invention, it's an invention. So once the invention is there, the only article remains the. So don't be blind, radio to the ही लगाना है। रेडियो आ गया, दैट मीन्स इट्स इन्वेंशन, इट्स एन इन्वेंशन, एंड एनी हाउ वी हैव टू पुट द आर्टिकल। नो, वी हैव टू सी द सेंटेंस, व्हाट द सेंटेंस सेज। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज, डिड यू रीड बुक टुडे, सम और एनी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जनरली वी कंसिडर एनी इज सुटेबल। This sentence is not a negative sentence. There is no indication that the sentence is negative. But it's a question. Question में क्या होता है कि जनरली any consider करते हैं if the question is asked to hope for a positive answer. Then here must be some. And if we consider and if we hope that the answer will be negative, then we have to use any. So in a single sentence it is not clear whether to use some or whether to use any. Although if the offer is there, if an offer is there, offer means positive, a question that wants positive answer. That means with offer we have to use some. Here it's not a offer. Now we have a clue that if we put some here, that means book must be plural, because it's a countable noun, and if a countable noun comes after some, it must be plural, leaving some cases, mind it. Some cases are there where some comes with a singular noun. Clear? So here it is not the case. If some is there, books has to be there. Any can take any type of noun, singular, plural, or it may be uncountable noun. So any is the correct option. Any. Hands up. Hands up. I will shoot you. ऐसी स्थिति में जब हम क्लॉज बनाते हैं तो हमें अपनी मदर टंग में उसका सेंस करके और ऑल द थ्री कंजंक्शंस डाल करके उसमें हमें देख लेना चाहिए। वी शुड सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस बाय अप्लाइंग ऑल द थ्री कंजंक्शंस वन बाय वन, नॉट ऑल टुगेदर। सो if we put and, then what will be the sense?
I am taking the sense in my mother tongue, that is in Hindi. You may take in your own mother tongue. Hands up, and I will shoot you. The sense is not perfect. हाथ ऊपर उठाओ और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. The sense is not correct. बट लगाइए, हैंड्स अप बट आई विल शूट यू. हाथ ऊपर उठाओ लेकिन मैं गोली तो मार ही दूंगा. ये भी सही नहीं है. और के अर्थ दो होते हैं, दो सेंस इसके निकलते हैं. एक तो निकलता है ऑप्शन वाला जिसे अथवा कहते हैं, और एक निकलता है अपोजिट सेंस जिसे कहते हैं अन्यथा, अदरवाइज का सेंस देता है. सो यहां पे देखिए, हैंड्स अप अथवा मैं गोली मार दूंगा, ये भी सही नहीं है. और हैंड्स अप अदरवाइज मैं गोली मार दूंगा, ये सही हो गया. दैट मीन्स और के जो दो सेंस हैं, एक तो ये ऑप्शन बताता है ना, और एक ये क्या बताता है, अदरवाइज का सेंस देता है. इफ यू डू नॉट नो द टू मीनिंग्स ऑफ और, दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल द गैप. It is very difficult to fill the gap. So the second meaning of or is otherwise, and the same will be here, or. Now the sentence is complete. See the fifth sentence. I played cricket but my brother, and but or nor. If the two sentences, if any two sentences are joined using and but or nor, both the sentence should be in the same tense. It's a general rule. So here we see past indefinite. So here we have also used, we have to use also second past tense. Flew, the spelling is wrong. Flew. Clear? हाउ यू स्पीक सो, ये तो हिम्मत वाली बात है. कोई चैलेंज कर रहा, चैलेंज के लिए केवल डेयर ही आता है. सो डेयर, नो कंफ्यूजन इन इट, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन इट. नाउ सी, रामू विल पोस्ट द लेटर्स, चेंज द वॉइस. ये एक्टिव है या पैसिव? तो पैसिव का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. पैसिव का फार्मूला क्या होता है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, डन इंडिकेट्स थर्ड फॉर्म. बी मीन्स इजेमार, बाजबार, बी बीइंग, बीन. ये बी के 8 तरह से 8 शब्द होते हैं बी से निकले हुए. तो अब यहां तो इसमें ना तो बी है और ना थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स इट्स नॉट ए पैसिव. तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले रामू को पीछे ले जाते हैं, बाई रामू. रामू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? द लेटर्स, दैट इज ऑब्जेक्ट, द लेटर्स. विल का विल आ जाएगा. विल या सेल में हम कर सकते हैं अगर गुंजाइश है तो. अगर यहां पे आई और वी में से कुछ आता नहीं कर सकते तो विल भी बना रहा है, दैट हार्डली मैटर्स. फिर पोस्ट का क्या करेंगे? बी पोस्टेड, बी पोस्टेड. अब देखो, बिल को भी फर्स्ट फॉर्म मिल गई और पैसिव को बी के साथ थर्ड फॉर्म मिल गई. अब ये आपका परफेक्ट पैसिव बन गया है. ठीक है ना? ये आपका कौन सा सेंटेंस का आंसर था? 7th. 8 देखिए, मोहन स्टार्ट स्पेंडिंग हिज सैलरी. मोहन अपनी सैलरी खर्च करना शुरू कर देता है. एज सून एज ही गेट्स इट, जैसे ही उसे वो मिलती है. इसको क्या करना? रिराइट यूजिंग नो सूनर देन. यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई. सेंटेंस बिल्कुल सरल है लेकिन डिफिकल्ट भी है. अब ये दोनों बातें कैसे देखिए. प्रॉब्लम ये है कि नो सूनर एज सून एज के प्लेस पर ही लगेगा. कहां लगेगा? एज सून एज के प्लेस पर ही लगेगा. एज सून एज के प्लेस पर ही नो सूनर लगेगा. क्लियर? अब एज सून एज के प्लेस पर जैसे ही नो सूनर लगाते तो देन फिर कहां जाएगा? देन तो बीच में ही आता है, एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. दैट मीन्स एट द प्लेस ऑफ कॉमा वी शुड पुट देन. तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस. The last sentence, the second sentence we should write at the first, because no sooner can only come at the very beginning of the sentence.
So we have to write the sentence as per our norms. See here, as soon as एग्जाम में आ जाए तो इसको रफ पे करके देख सकते हैं। as soon as he gets it, comma, Mohan starts spending his salary। अब इस सेंटेंस में हमने कर लिया इसको, एज सून एज उठा के पहले रख लिया, इसको बाद में लिख दिया। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई, ही का सेंस, ही मीन्स क्या था? मोहन। ही मीन्स क्या था? मोहन। इट मीन्स क्या था? हिज सैलरी। तो नाउन पहले आता है और प्रोनाउन उसके बताने के लिए बाद में आता है। नाउन कम्स फर्स्ट एंड प्रोनाउन कम्स नेक्स्ट। ए प्रोनाउन हैज टू सी at its backside that which is the noun that I should give sense to। कौन सा नाउन है जिससे मैं पूछ के अर्थ दूं? अब इसके पहले कोई नाउन नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रोनाउन है, जो सॉरी नाउन है, उनको पहले लाना है और प्रोनाउन को बाद में लिखना है। और जो नाउन जो है उनको पहले लाना है और प्रोनाउन को बाद में लिखना है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? ही के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? मोहन। क्या करना पड़ेगा? मोहन। मोहन होगा तो गेट्स हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी हो गया था। और ही, मोहन की जगह पे ही करना पड़ेगा। अच्छा, इट किसके लिए आया है? हिज सैलरी के। तो हिज सैलरी पहले लिखा जाएगा चूंकि ये नाउन है, हिज सैलरी। और हिज सैलरी की जगह पे क्या आ जाएगा? इट। Now the sentence is ready to change, to rewrite using no sooner। अब आप कर सकते हैं इसको, नो सूनर, एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर लगा दीजिए। नो सूनर मस्ट बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एज सून एज एंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर इसमें वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो डज मोहन गेट। अब डज आ गया तो इसका एस नहीं लगेगा। हिज सैलरी, हिज सैलरी। कॉमा की जगह पे क्या आएगा? देन। देन करके दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा। देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। क्लियर? 9th नंबर का सेंटेंस देखिए यहां पे, सी, इसमें देखो एनी आया है, मेटल, एज, लीड, एनी अदर, एन वो, देन, अदर, एनी, हैवियर। तो इसमें एक चीज तो क्लियर बन रही है, एनी अदर मेटल, देन एनी अदर मेटल, ये तो क्लियर बन रहा है। क्या बन रहा है? देन एनी अदर मेटल। अब देन के पहले क्या होना चाहिए? हैवियर। हमने किस किस को लगा लिया है? देन एनी अदर मेटल। और इसके पहले क्या आएगा? देन के पहले तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो हैवियर। सेंटेंस को कहीं से भी पकड़ लो जहां से आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब क्या बचा? हैवियर भी आ गया। अब क्या बचा? लेड, इज, दो ही शब्द बचे हैं तो बस कर दी। इज लेड लिखा है तो उसको सेंटेंस, चूंकि यहां पे अगर इंटेरोगेटिव साइन होता तो हम इज लेड करते, इंटेरोगेटिव साइन नहीं है तो हम इसको असर्टिव बनाएंगे, माने हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखेंगे। तो लेड इज, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर डू यू नो दिस द ट्रेन इज लेट। वीडियो लंबा हो रहा है, इसकी जगह दूसरा सेंटेंस हम लेना चाह रहे थे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, डू यू नो दिस द ट्रेन इज लेट।
तो आप ये देखिए, इस दिस को हटा करके ये सेंटेंस रख जाएगा, चूंकि ये एक एसर्टिव सेंटेंस है ये, और एसर्टिव सेंटेंस में हमेशा दैट कंजंक्शन का यूज होता है नाउन क्लॉज में, ये बता रहे हैं नाउन क्लॉज में। अरे नरेशन को याद कर लीजिए, नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में होता है, रिपोर्टेड स्पीच में तो दैट से ही जोड़ते हैं ना। तो सेम वे, क्योंकि नरेशन में चेंज करके भी हम नाउन क्लॉज ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मैक्सिमम टाइम। तो देखिए, डू यू नो, अब ये दिस पूरी तरह हट जाएगा यहां से, दिस के प्लेस पर ये सेंटेंस लगेगा। सेंस भी लगा के देख लीजिए, डू यू नो दिस, क्या आप ये जानते हो? ट्रेन लेट है, ये माने क्या हो गया, यह माने क्या हो गया, ट्रेन लेट है। तो ट्रेन लेट दिस की जगह पे ही रख दीजिए, दैट नो दैट द ट्रेन इज लेट। क्लियर? अब कुछ बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग ये कर जाते हैं कि सर दिस का दैट कर दो, ये सेंटेंस लिख दीजिए। सम स्टूडेंट में मिस्टेकिंगली अंडरस्टैंड दैट दिस शुड बी चेंज्ड टू दैट एंड कॉपी द सेकेंड सेंटेंस। इट इज नॉट देयर थियोरेटिकली ऑन रियली। दिस एंड द ट्रेन इज लेट both contains the same sense. So this has been replaced by the train is late. क्लियर? सी, अब हां, एक मिस्टेक इसमें हो गई। क्या मिस्टेक हो गई अभी इस सेंटेंस में, कि मेन क्लॉज हमारा क्या है? मेन क्लॉज हमारा ये है डू यू नो। नाउन क्लॉज कौन सा है? नो के ऑब्जेक्ट के रूप में ये दैट द ट्रेन इज लेट। तो अब इस सेंटेंस का जो फाइनल चिन्ह आएगा, फाइनल मार्क आएगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, वो मेन क्लॉज के हिसाब से आएगा। एंड मेन क्लॉज is an interrogative sentence, so here must be question mark. Clear? We eat to live, it's a simple sentence, isn't it? इसको चेंज करना है, चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अब हम देखते हैं, इसका थोड़ा सेंस निकालते हैं, कोशिश करते हैं। Why do we eat? We eat to live. क्लियर? यानी ये कहीं पे हम देखें तो पर्पस बता रहा है, हमारी ईटिंग का पर्पस क्या है? टू लिव। तो इसको ऐसे बना लें, देखना अभी, टू लिव को एक सेंटेंस बना के यहां सेट करना है। कैसे? आंसर देखिए इसका क्या आएगा, वी ईट सो दैट वी। अब पर्पज क्लॉज में दो ही मॉडल प्रयोग होते हैं, या तो मे और या फिर शुड। शुड आता है लेस्ट के साथ में और सो दैट के साथ में मे आता है। क्लियर? शुड, वी शुड यूज शुड विथ द कंजंक्शन लेस्ट एंड वी शुड यूज मे विथ द कंजंक्शन सो दैट। क्लियर? इन सम केसेस इंस्टेड ऑफ मे कैन आल्सो be possible. So that we may. अब प्रेजेंट टेंस कोई दिक्कत नहीं, मे रह सकता है यहां पे। इफ इट हैपन टू बी पास्ट इन पास्ट देन हियर मस्ट बी माइट। सो वी मे, सो दैट वी मे लिव। सिंपल है बिल्कुल। क्लियर? नाउ यू कैन सी this is a sentence and this one also is. We have changed to live. This was an infinitive phrase. This was an infinitive phrase and we changed the infinitive phrase into a purpose clause, adverb clause of purpose, and it has become a complex sentence. So please, thank you. Continue watching. If you like, share with your friends.